Hello everyone, welcome to Inspiring Life. 70 days plan with strategy which I share today so you can achieve your goal at a less time. You can score very good marks in the less time because our exam is coming on 21st Feb. So we need to complete our syllabus before the Jan because every college is conducted pre-exam on Jan. So we need to complete our syllabus in last 31st of December. So before we starting our video, first we think and listen these शायरीज so we can motivate. ना थकेंगे अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है. यस दोस्तों, जब तक हम अपनी मंजिल के पास नहीं जाते, जब तक हम अपनी मंजिल को पा नहीं लेते, जब तक हमें रुकना नहीं है. यस दोस्तों, रुकना नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. अगर आप में से कोई बच्चे होंगे जो अभी तक भी पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है, यू आर नॉट स्टडी still now, so what you do? Don't worry. If you follow this timetable, if you follow this plan, you can work according to this, you are giving your 100%, then I definitely sure you can get your A marks and you can get your own marks and you can achieve your goal, right? So let's begin. So first we are understand the syllabus, how many subject we are, and we need to follow this subject, how we are follow this everything, see, right? So first we have a 6 subject, right? English, Hindi, Maths, Account, and OCM, Eco, right? So let's begin. First we see English, right? So we are not take a language subject as a seriously, but we need to think because it is also cover 80 marks. It is also important compared to other subject. We are studying OCM, every principle are equal. So in English, in any subject are important, so we need to follow every subject, we need to take a serious for every subject. So I have some point we need to follow. First, read all the chapter and understand. Yes दोस्तों, फर्स्ट हमें सारे चैप्टर को अच्छे से समझना है, उसे ध्यान से पढ़ना है. वन रीड, हमें उसे डीपली तक नहीं जाना है. वन सिंपल रीडिंग वी नीड टू डू. आफ्टर द रीडिंग हमें सारे पोएम्स करना है, एक भी पोएम्स को नहीं छोड़ना है. अब वी कैन डू स्मार्ट वर्क. जो पोएम अगले साल आए थे, दे आर नॉट रिपीट इन दिस ईयर, राइट? सो वी आर फाइंडेड दोज टाइप्स ऑफ पोएम विच इज़ कम next year, so we did not follow this year, right? Solve practice paper. After you done reading the all the chapter, you are doing all the poem, you are also doing appreciation of poem because it's also important. So this all of thing you are done with, then you can come for practice paper because in language practice paper is very important. In every subject practice paper is very important, but especially in language paper because in language paper not is theory everything, right? You need to work on your mind, right? So हमें अपने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है, उसमें हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता करना है, राइट? जैसे आपको राइटिंग स्किल में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आपको अभी से राइटिंग स्किल में वर्क करना है. या आपको ग्रामर में टाइम लग रहा है, या आपको किधर टाइम लग रहा है, यू नीड टू फाइंड इट, राइट? उसके बाद आप उस पर वर्क कर सकते हो. सो इंग्लिश में हमें ऐसे करना है. लेट्स मूव ऑन हिंदी. सो अकॉर्डिंग टू डैट वी आर ऑल्सो डू सेम थिंग. अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी को एकदम सीरियसली लेते ही नहीं. दे आर थिंकिंग दैट इट इज़ आवर मातृभाषा, राइट? सो क्यों इसमें इतना टेंशन लेना, बट यू फॉरगेट दैट ये भी 80 मार्क्स ही कवर कर रहा है. सो हमें इसे भी सीरियसली लेना चाहिए, राइट? डोंट टेक अ हिंदी हैज़ अ ईजी सब्जेक्ट, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अभी हम हिंदी में भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ते नहीं हैं, पोएम पढ़ते नहीं हैं और डायरेक्ट क्या करेंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं. हमें ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना.
गाइस रियली मैं पहले चैप्टर और पोएम बिना पढ़े हिंदी पेपर सॉल्व करने गई थी, तो आई फेसिंग लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. सो वी नीड टू स्टडी ऑल्सो. सो हमें सिंपल रीडिंग करना है. हर चैप्टर को एक एक रीडिंग करना है, उसे समझना है. एक रीडिंग में ही हम लोग समझ जाएंगे. देन हमें पोएम्स करना है, उनके अप्रिशिएशन करके लेखक कौन है, लेखक ने कितनी रचनाएं की है, लेखक की कितनी रचनाएं ज़्यादा फेमस हुई है, लेखक कहाँ जन्मे थे, लेखक की क्या है, राइट ऑफ थिंग, एवरीथिंग अबाउट द राइटर, एवरीथिंग अबाउट द पोएम वी नीड टू स्टडी. सो अगर आप ये सब कर लेते हो, ये डोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डूइंग दिस, राइट. ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. अगर हम सीरियसली इसे करना चाहें, वी कैन कंप्लीट एट अ 6-5 डे. आफ्टर दैट यू कैन डू प्रैक्टिस पेपर. अंडरस्टैंड, आप हर वीक पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर ये आपका हो चुका होगा तो. एंड अंडरस्टैंड योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट, राइट. आपकी जो अच्छी है वो भी देखो, बुरी है वो भी देखो, राइट. तो आपको इन हिंदी राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हिंदी लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऊपर से राइटिंग स्किल है, लेखक है, वो सारे चीज़ें, तो इट्स कवर लॉट ऑफ टाइम. सो हमें देखना होगा कि कहाँ हमारी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है. वी कैन मैनेज आवर टाइम अकॉर्डिंग टू दैट. यस, ये हिंदी के लिए है. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सब्जेक्ट. It is OCM. OCM is also very important because it's also cover 80 marks, right? So OCM में तो आज हमारे पास 80 chapters, so we can study very quickly and very effective way. So we can cover in OCM 99% marks. If you know the OCM is all about theory and understanding. If you understand every concept very deeply, then you can able to cover your होल सिलेबस, राइट. सो अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते हो, आप 8 के 8 चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते हो और आप ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो, तो उसके लिए भी हमारे पास रास्ता है. सो ऐसे सब्जेक्ट कीजिए, ऐसे चैप्टर कीजिए दोस्त वो कवर मोस्ट ऑफ द वेटेज, राइट, जिसका वेटेज ज़्यादा है इन OCM. सो वी कैन सी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कवर 12 marks with option. Remember, it is with option. Function of management, business service 27 marks, consumer protection 70 marks, marketing 20 marks. Total of this 91 marks on this. If you are doing this much only, then you can get 91 marks. Remember, I think it is a smart work. आप 5 चैप्टर करोगे और आपको 75 से भी ज़्यादा मार्क्स आएगा. आप 91 में से अगर आप कुछ नहीं आया, फिर भी अगर मैं गिनूंगी तो आपको 75 या उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो. अगर आपने इतने ही चैप्टर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शिद्दत से अगर किया ना, तो यू कैन अचीव योर गोल इन OCM. इट इज़ वेरी ईजी और इट्स टेक अ हार्ड वर्क. एवरीथिंग इज़ नॉट ईजी लाइक वी आर थिंक. सो वी नीड टू डू हार्ड वर्क, राइट. इफ़ यू आर कंप्लीट दिस चैप्टर तो स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर. सो अगर आपने 5 ही चैप्टर कर लिए 8 में से, तो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो. आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आते थे, केस स्टडी कैसे होते थे. बिकॉज केस स्टडी इज़ वेरी इजी, यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स. सो यू कैन थिंक अकॉर्डिंग टू दैट, राइट. OCM वी नीड टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी. ये आपको बहुत ही ध्यान देना है. आई थिंक आप सब पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे, बुक और पेन लेके बैठे होंगे. यू आर नोट दिस थिंग्स बिकॉज इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ अ डीप स्टडी, राइट. नाउ मूव ऑन इकोनॉमिक्स. सो वी हैव अ इकोनॉमिक इन 9 chapter, but we are calculate 3(1) and 3(b). So 3A, 3B, so total 10 chapter, right. So in economy there are no easy, right. It is not, we cannot skip any chapter, but if you are doing 8 or 9 chapter very clearly, very deeply, you can score good marks even. So every subject, every chapter is very important, but it is very easy to study. Economics is really, every chapter is simple language, simple theory,
it is a given. You can if you give economic for 20 days, you can cover all of things, right? I'm seriously saying you, right? अगर आप ये सारे चैप्टर कर लिए 20 डे, #20 डे चैलेंज, यू कैन डू इट. ऐसे चैलेंज लिया करो सब्जेक्ट को कवर करने के लिए कि हाँ मैं 1 वीक में इतने सब्जेक्ट कवर करूँगा, मैं 2 हफ्ते में इतना करूँगा, 3 हफ्ते में इतना, 90 डे में इतना. तो यू कैन अचीव योर गोल इन बेटर वे, राइट? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट. अभी अकाउंट, इट्स समवन हैव इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट. किसी को लगता है कि बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, और किसी को लगता है बहुत ईजी है, अकॉर्डिंग टू पर्सन, राइट? सो हमें भी अकाउंट में भी स्मार्ट स्टडी करना है, नॉट अ हार्ड स्टडी, राइट? सो विथ ऑप्शन हम देख सकते हैं कि 2 चैप्टर इसमें कंपलसरी है जो हमें करना ही है. इट्स कवर लॉट ऑफ वेटेज, 12 मार्क्स, जो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, राइट? तो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोड्यूशन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, इट इज़ कंपलसरी. NPO इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ द चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू कैन डू इट इन थर्ड. आप इनमें से एक कर सकते हो, डेट ऑफ पार्टनर कर सकते हो या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, दोनों में से एक कर सकते हो. बिल ऑफ एक्सचेंज कर सकते हो या इशू ऑफ शेयर, इन सब में से एक कर सकते हो. और एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर सकते हो या कंप्यूटर अकाउंट में. मतलब आपको टोटल 5-6 चैप्टर करना है और आप अपने एम को अचीव कर पाओगे, राइट? आपको सारे नहीं करना है, गधा मजूरी नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क. सो स्मार्ट वर्क ऐसे ही किया जाता है. अभी अकाउंट में भी कुछ डू और डोंट है, जो हमें करना है और जो हमें नहीं करना है. अकाउंट में हमें डेली प्रैक्टिस करना है, येस, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, राइट? सो हमें हर रोज़ कम से कम 2 सम्स तो कर सकते हैं. इट्स नॉट टेक मोर देन 30 मिनट्स इफ़ यू आर डूइंग ओनली 2 सम्स, राइट? डू स्मार्ट वर्क, नॉट डू हार्ड वर्क. हार्ड वर्क मत कीजिए, कॉपी पेस्ट मत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, बिकॉज यू हैव अ लिमिटेशन ऑफ टाइम. सो हमें यहाँ हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है. और हार्ड वर्क मीन्स हार्ड वर्क कैसा करना है? पढ़ाई रोज करना है, इट इज़ अ हार्ड वर्क. और स्मार्ट वर्क क्या है? जो हमें तरीका ऑफ पढ़ाई, मेथड ऑफ स्टडी, इट इज़ स्मार्ट वर्क, राइट? प्रैक्टिस पेपर ज़रूर कीजिए, अंडरस्टैंड, और स्मॉल मिस्टेक को समझे, बिकॉज आप टैली कर लीजिए या किसी चीज़ को भी करिए, तो अगर वहाँ थोड़ा सा भी सिली मिस्टेक भी हुआ होगा ना, तो आपका टैली नहीं होगा और आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे. इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आई नो, आई एम ऑल्सो इवन फेसेस दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. डोंट टेक अ हार्ड एंड ईजी. सो हमें अकाउंट को ना ही हार्ड समझना है और ना ईजी, क्योंकि हार्ड समझेंगे तो हम इसे फोकस दे ही नहीं पाएंगे, ईजी समझेंगे तो हम इस पे सीरियस हो ही नहीं. तो इट्स टेक हैज़ अ सब्जेक्ट. सो हमें सब्जेक्ट है, हमें पढ़ाई करना और हमें अच्छे मार्क्स लाने. जस्ट थिंक्स दैट मच, नॉट मोर देन दिस ऑफ, राइट? डोंट अवॉइड प्रैक्टिस. हाँ, प्रैक्टिस को तो अवॉइड करना ही नहीं है हमें, प्रैक्टिस तो मस्ट वी डू. डोंट मिस एनी कंसेप्ट. येस दोस्तों, हमें कंसेप्ट समझना ही होगा, क्योंकि हमें 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव भी आ रहे हैं जो हमें करना है. अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो 20 मार्क्स में जो ऑब्जेक्टिव आएंगे, हम एबल टू डू दिस, राइट? और ऑल द MCQs हमें करना है. मैं आपको चैप्टर कुछ बता रही हूँ, जैसे हमें OC में 8 में से 5 करना है, बट MCQs हमें 8 करना है, राइट? आप क्वेश्चन आंसर मत कीजिए, बट MCQs 8 के कीजिए, क्योंकि वो भी आएंगे. तो लेट्स थिंक. अभी नाउ वी आर सी ऑल द चैप्टर, ऑल द सब्जेक्ट. अभी मैं आपको डेज बताती हूँ कि कितने चैप्टर को कितना डेज दे, कितने सब्जेक्ट को कितना डेज, राइट? सो डे डिवाइडेड, हमारे पास 75 डेज है, तो 12 डे फॉर द लैंग्वेज. हमें 12 दिन लैंग्वेज को देना है. 6 दिन आप हिंदी को दीजिए और 6 दिन आप इंग्लिश को दीजिए. आप सोचेंगे इतना कम टाइम, बट आई एम टेकिंग सीरियसली. अगर आप चैप्टर को रीड ही करना है, आप सारे चैप्टर को रीड कीजिए 1 टाइम. आपको वीडियोस देखना भी नहीं है, आपको रीड करके समझना है बस. और उसके बाद आप 1-2 पेपर सॉल्व कीजिए और आप कर पाएंगे पेपर सॉल्व. इट्स रियली ट्रू.
आप एक बार ट्राई करके तो देखिए। और 20 डेज़ फॉर मैथ्स, मैंने आपको मैथ्स के लिए भी बताया था। आई विल शेयर मैथ्स स्ट्रेटेजी फर्स्ट। सो मैथ्स के लिए हमें ये करना है, हमारे मैथ्स 1 और मैथ्स 2 बोथ है, तो हमें मैथ्स 1 में क्या करना है वो पहले देखते हैं विथ ऑप्शन में। हमें भी मैथ्स में भी पता है कि हमारे पास 10 सब्जेक्ट है और 10 चैप्टर है, और मैथ्स 2 में भी हमारे पास 10 चैप्टर है, तो हमारे पास टोटल 20 चैप्टर है, राइट। पर हमें स्मार्ट वर्क करना है, यू आर द स्मार्ट पीपल, हमें स्मार्ट वर्क करना है, राइट। तो पहला देखो, मैथमेटिक लॉजिक 8 मार्क्स का है, मेट्रेसी 8 मार्क्स का है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये भी 9 मार्क्स का है, डिफरेंशिएटिव ये भी 9। तो हमें ये इतने ही चैप्टर करना है, 1 2 3 4 5, ओनली 5 चैप्टर अगर किए ना आप मैथ्स 1 के। और ये मैंने जो वेटेज जिसका ज़्यादा है मैंने वही चैप्टर करने की कोशिश की, बिकॉज अगर आप अभी हमारे पास लेस टाइम है, तो जिसका वेटेज कम है अगर वो करेंगे तो वो टेक अ लॉट टाइम और हम उतना मार्क्स भी नहीं ले पाएंगे। अगर जिसका वेटेज ज़्यादा है अगर हम वो करते हैं तो ये टेक अ गुड इफेक्ट, राइट। तो हमें 5 चैप्टर करना, 42 ये मार्क्स होते हैं। और मैथ्स 1 में, मैथ्स 2 में हमें क्या क्या करना है, कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट ये भी 8 मार्क्स का, इंश्योरेंस ऑफ यूनिटी 8 मार्क्स का, टाइम सीरीज 9 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स, लीनियर ये 8 मार्क्स, लीनियर ये भी 8 मार्क्स, ये 56। सो अगर आप इतने ही चैप्टर करते हो मैथ्स 2 में 6 चैप्टर करते हो, अगर आप एक चैप्टर छोड़ भी दोगे तो नो प्रॉब्लम, 6 चैप्टर आप 5 चैप्टर 6 चैप्टर व्हाट यू वांट वो करते हो, और मैथ्स 1 में 5 चैप्टर करते हो। तो देखो मैथ्स 1 प्लस मैथ्स 2 इज वेल टू 80, 56 मार्क्स प्लस 42 मार्क्स इज 98 मार्क्स आप कर रहे हो चैप्टर, राइट। अगर आप उसमें से कुछ गलत भी हो जाता है तो आपको आराम से 60 के अवॉव ही मिलेगा, 70 का अवॉव ही मिलेगा। यू रिमेंबर, यू थिंक, जस्ट थिंक, आप 70 के अवॉव ही अचीव करोगे अगर यही 10 चैप्टर करते हो बहुत ही अच्छे से, बहुत, एक भी एक्सरसाइज मिस नहीं करना है, एक भी सम्स को मिस नहीं करना है, सभी सम्स को कर डालो, सभी सॉल्व अनसॉल्व सभी को कर डालो, राइट। फिर आप ज़रूर इतने अच्छे मार्क्स ले पाओगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ आपको MCQ सबका करना है, मैं सारे सब्जेक्ट की बोल रही हूँ कि MCQ सबका करना है, बिकॉज MCQs ऑल्सो कवर 20 मार्क्स 10 मार्क्स, सो वो सभी सब्जेक्ट में सभी चैप्टर में से आएंगे, नॉट कि हाँ इतने में से आएंगे, ठीक है। और हमें मैथ्स में भी हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। विदाउट सॉल्विंग प्रैक्टिस पेपर यू आर गोइंग टू डायरेक्टली इन एग्ज़ाम, मतलब प्री में भी अगर बैठोगे तो भी आपको थोड़ा बहुत तो डर लगेगा। अगर आप पहले से ही पेपर सॉल्व कर लेते हो तो प्री में भी आपको डर नहीं लगेगा, और एग्ज़ाम के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। अभी हम यहाँ देखते हैं, तो मैंने आपको बोला था 20 डे मैथ्स को देना है, तो आपको 10 चैप्टर है, राइट। आपको 10 चैप्टर ही करना है। आप अगर आपके पास टाइम है, आपने पहले से ही कर चुका है, तो आप ले सकते हो, आप 10, आपको जैसा मन है वैसा कर सकते हो। बट अभी तक आपकी स्टडी नहीं हुई है तो आप 20 डे मैथ्स को दो और बस वही 10 चैप्टर करो जो मैंने आपको बोला है, बिकॉज इट्स कवर लॉट ऑफ वेटेज। अगर आपका वो हो चुका है, आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो, इट इज़ वेरी गुड, यू कैन डू इट। और आपको ना 12 दिन में लैंग्वेज है तो 2 सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करना है, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। 5 दिन पढ़ाई करो, 6वें दिन एक सैम्पल पेपर, 5 दिन पढ़ाई करो, 1 दिन सैम्पल पेपर, राइट। और हमें मैथ्स में भी ऐसा करना है, 11 दिन 12 दिन पढ़ाई करो, फिर एक सैम्पल पेपर, फिर 8 दिन 7 दिन पढ़ाई करो, फिर एक सैम्पल पेपर, सो इट्स टेक इफेक्टिव। 20 डेज फॉर अकाउंट के भी मैंने आपको बोला था कि आपको 5-6 चैप्टर ही करना है, तो आपको 5-6 चैप्टर के लिए मैं 20 दे रही हूँ, बिकॉज आपको 6 चैप्टर करना है अकाउंट में, और आपको एक सैम्पल पेपर भी करना है। हो जाएगा, अगर आप अच्छे से पूरी मेहनत से करोगे ना तो हो जाएगा। आप पूरे दिन खाली अकाउंट को लेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि 20 डे आप खाली अकाउंट को लेते हो, #20 डे चैलेंज, तो आप कवर कर पाओगे। 10 डे OCM को 10 डे क्यों, बिकॉज इट इज़ वेरी थेरी इजी सब्जेक्ट, इजी चैप्टर्स, राइट। सो आप 5 चैप्टर है और 10 दिन में करें ना, एक चैप्टर
2 दिन को भी लगाएंगे ना फिर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, बट आपको एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। 30 डे फॉर इको के थोड़े ज़्यादा चैप्टर है तो आपको 30 डेज मिल रहा है। आप एक एक चैप्टर को एक एक दिन में करो और अच्छे से करो, फिर यू कैन डू 11 डे इन रिविज़न, फिर प्रैक्टिस पेपर, फिर जो नहीं आ रहा उसको करेंगे, यू कैन डू इट। ये हमारा टोटल ये डे काउंट करते हैं। अगर आप इतना ही जैसे मैंने बताया अगर आप यही करते हो, देखो 12 डेज इंग्लिश, 20 डे हिंदी, 20 डे 20 डे अकाउंट, 20 डे मैथ्स, 10 डे इको हो, 10 डे OCM और 30 डेज इको, इट्स 75। सो हैशटैग 75 डेज चैलेंज, डू योर 100%, देन यू कैन अचीव योर गोल। अगर आप जैसे मैंने आपको प्लान बनाया, अगर आप वैसे ही अगर पूरे शिद्दत से अगर मेहनत करते हो, वही स्ट्रैटेजी, वही स्मार्ट वर्क, वही विथ हार्ड वर्क, तो आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे, राइट। इतना ही कर लिए, यू कैन अचीव योर गोल, राइट। सो इफ़ यू so let's end of this video. All the very best, give your 100%, every time think this, everything is possible, just believe in yourself। आप ये 70 दिन में भी बहुत मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। वैसे तो आपके पास अभी थोड़े और ज़्यादा दिन है, बट आप 70 दिन का मैंने आपको बताया। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो, कल देख रहे हो या 4 दिन बाद भी देख रहे हो, फिर भी आपके पास 75 डेज रहेंगे और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको 30 डेज़ प्लान बना के दूँ, हाउ टू कवर 30 डेज़ प्लान फॉर इको तो मुझे बताइए इन कमेंट। तो मैं ये वाले वीडियोस भी बनाऊंगी जिससे आपको वेरी बेनिफिट हो, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप सो इट इज़ यूज़फुल टू यू, थैंक यू।